मॉडर्न रिसर्च और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अब साबित कर रही है कि बच्चों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनकी मेंटल कैपेसिटीज को तबाही की जानिब धकेल रहा है। यानी सोशल मीडिया का अंधाधुंध इस्तेमाल कम उम्र बच्चों के लिए एक खामोश खतरा बन चुका है। यानी बच्चों की मेंटल हेल्थ, सोचने की सलाहियत और सीखने का अमल बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ये दावा मेरा नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की राय है। रिसर्च रिपोर्ट्स हैं और सर्वेस के नताइज इस मौजू पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं और पूरी दुनिया इसे सुन रही है। Social media is a serious health hazard, especially for young people. It's messing with their minds, and in an increasing number of tragic cases, it's killing them. For decades, there's been that Surgeon General's warning on packs of cigarettes. But this morning, for the first time, a new warning about something else: social media and what it means for kids' mental health. There's a negative side: unchecked screen time, which can lead to poor sleep, memory issues, and poor overall mental health. Studies show that too much time on social media apps can be linked to anxiety and depression. On average, American children ages 8 to 12 spend 4 to 6 hours a day watching or using screens. And for teens, it's up to 9 hours a day. हम सब जानते हैं कि आजकल प्राइमरी क्लासेस के बच्चे तक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट में खोए नजर आते हैं। पेरेंट्स शरारतों से बचने के लिए उन्हें टैबलेट्स या स्मार्टफोन्स देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। यानी जब तक बच्चा सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहेगा, घर में स्कूल रहेगा और वालिदैन भी बासानी अपने काम कर सकेंगे। मगर इस रूटीन से बच्चे कम उम्री ही में डिजिटल एडिक्ट बन जाते हैं। एक तरह से डिजिटल नशा हो जाता है। ऐसे पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट जो कि मेडिकल जर्नल जामा में शाया हुई, उसमें बताया गया कि सोशल मीडिया की वजह से नन्हे जहनों पर क्या असरात होते हैं, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है। इस रिसर्च में बताया गया कि रोज़ाना सोशल मीडिया का घंटों इस्तेमाल बच्चों के फोकस, लर्निंग कैपेसिटी और सोशल बिहेवियर पर ज़बरदस्त असरअंदाज होता है। दरअसल कोरोना पैंडेमिक के दौरान छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ईमेल और GCR यानी गूगल क्लासरूम ID बनाना लाजमी था, जिसके बाद अक्सर बच्चों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी बना ली और इस डेवलपमेंट ने पहली बार दुनिया के करोड़ों बच्चों को वर्चुअल दुनिया में धकेल दिया। यहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। New York-based social psychologist Jonathan Haidt isn't holding back. He says big tech is making our kids sick, even killing them, and he's on a mission to show the world the proof. We have an international epidemic of depression, anxiety, self-harm, and suicide. What we saw was the almost instantaneous transformation of childhood into a form that I think is incompatible with healthy human development. You call it the surge of suffering. You're not mincing words, you're not sugarcoating it. What does your data show? Something happened in the early 2010s that sent teen mental health spiraling downward. So what we see in the United States, when we graph out the percent of American teens who suffer from anxiety, depression, those who self-harm, those who are hospitalized, what we see is very stable levels from the 1990s through 2010. And then right around 2013, 2012, suddenly a lot of curves begin going up very, very sharply. And we see the same thing in the UK, and the same thing in Canada, the same thing in Australia, the same thing in New Zealand, the same thing in the Scandinavian countries and Northern Europe. So something happened globally that sent mental health spiraling down. दुनिया के कई कंट्रीज बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज को किसी फैमिली का पर्सनल मैटर या निजी मामला समझने के बजाय सोशल सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। पिछले चंद दिनों में ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर मुकम्मल बैन लगाना, पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन गया। Hi there, students. It's the Prime Minister here, and I want to speak to you directly about something very important. From December 10, if you're under 16, you're no longer allowed to have a social media account. You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds, and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you. Make the most of the school holidays coming up, rather than spending it scrolling on your phone. Start a new sport, learn a new instrument, or read that book that's been sitting there on your shelf for some time. And importantly, spend quality time with your friends and your family, face to face. Have a great summer.
ऑस्ट्रेलिया ने 16 इयर्स के कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर मुकम्मल बैन का कानून नवंबर 2024 में मंजूर किया था और कंपनीज को 1 साल की मोहलत दी थी कि वो अपने सिस्टम्स में सब्सक्राइबर्स की उम्र की तस्दीक के लिए नए तरीके अपनाएं और 10 दिसंबर 2025 तक तमाम बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दें। Mainly right now, well before the ban, everyone used to talk to each other through Snapchat, which is one of the apps getting banned. And everyone seems to be freaking out and giving their phone numbers out since we don't have that mode of communication anymore. It's just kind of like pointless. Like it's just like we're just gonna create like new ways to get on these platforms. So like, what's the point, you know? I kind of see where they're coming from, but also I think if you can get a job at 14, if you can take care of someone's kid, like do babysitting and stuff, I think you should be able to like be able to have social media and have the government like trust you on it. ऑस्ट्रेलिया की देखा देखी दुनिया के कई मुल्क तेजी से इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि मुख्तलिफ गैजेट्स पर मुसलसल स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशन और एल्गोरिथम के जरिए बनने वाला डिजिटल प्रेशर बच्चों के मेंटल, सोशल और इमोशनल बैलेंस को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। In the European Parliament, we recently voted an own initiative report where we call for an age limit for access to social media. We want it to be 16 years, but if parents give consent, it could be from 13 years, and we want that age limit to be controlled. We also have other calls. We want to make sure that we get rid of some of the very harmful addictive design features. We want to really make sure that we can protect kids online, and we are not doing sufficiently today. So that's why we call upon the European Commission to do more. What we are trying to propose here in Denmark is that you're not allowed to be on social media platforms before the age of 15, but if you have parental consent, you can be there from 13, but we advise parents not to move their children on social media platforms before the age of 15. बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स, स्टडीज और सर्वेस कंफर्म कर रहे हैं कि बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों को एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट तक भी रसाई फराहम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक पार्लियामेंट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से 13 साल की उम्र तक के ज़्यादातर बच्चों ने सोशल मीडिया पर गेमिंग, ऐप्स की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्क्रीन पर पहली बार डेटिंग, गैम्बलिंग और पोर्नोग्राफी तक एक्सेस हासिल की है। अगरचे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रस्मी तौर पर 13 साल से कम उम्र बच्चों को सब्सक्रिप्शन की इजाज़त नहीं देते, ये हद भी बच्चों की नफ्सियाती ज़रूरत के बजाय अमेरिकन डेटा प्रोटेक्शन लॉज के तहत रखी गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया समेत कई कंट्रीज़ के रेगुलेटर्स ने साबित किया है कि बच्चे इन रिस्ट्रिक्शंस को बासानी बाईपास कर लेते हैं। अमेरिका में 13 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के डेटा के लिए वालिदैन की इजाज़त लाजमी है, लेकिन इनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और ब्रिटिश रेगुलेटर्स ऑफकॉम के सर्वे जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका में 8 से 12 साल के 40% और यूके में 8 से 11 साल के 60% बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दोनों मुल्कों के रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते। सर्वेज में बेशुमार बच्चों के ऐसे तरीके भी सामने आए जिनसे वो वालिदैन या बड़े बहन भाइयों के फ़ोन, VPN या टेक्निकल चक्रों के ज़रिए वेरिफिकेशन सिस्टम से बच निकलते हैं। दुनिया के माने जाने बिलियनर टेक जायंट इलॉन मस्क का कहना है कि हर पेरेंट को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पेरिस में विवा टेक कॉन्फ्रेंस में मस्क ने इतराफ़ किया कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी सोशल मीडिया से नहीं रोका, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती और बहुत बड़ी गलती महसूस होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। Social media, but we spend so many hours on social media, and sometimes when we go to our kids, we see them spending also long hours. Part of it's knowledge. Do you have any rule for your kids? I mean, how much they can spend in social media? I've generally not tried to restrict social media for my kids, although that might have been a mistake. Depending on which kid it is, they've really been programmed by Reddit and YouTube, I'd say, more than anything else, Reddit and YouTube. I think probably I would limit social media a bit more than I have in the past, and just take note of what they're watching, because I think
at this point, they're being like programmed by some social media algorithm, which you may or may not agree with. So I think probably one needs to supervise children's use of social media and be wary of them getting programmed by some algorithm written in the Silicon Valley, which may or may not be what you want. द गार्डियन ने बरतानवी चैरिटी गैम्बल अवेयर की 2017 और 2019 में कंपाइल की गई 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिनमें बताया गया था कि सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से ऑनलाइन गैम्बलिंग बेटिंग के लिए प्रमोशंस की वजह से 13 से 17 ईयर्स के बच्चे बहुत जल्द इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर द वन स्पाई के एल्गोरिथम्स के मुताबिक ज़्यादातर बच्चे पहली बार गलती से या अनइंटेंशनली कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देख लेते हैं और फिर वो उसके एडिक्ट बन जाते हैं। एक तरह से नशा हो जाता है उन्हें। कंसर्न की बात यह है कि बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के नुकसानात के सबूत मुसलसल बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक 2018 से 2022 के दरमियान सोशल मीडिया ये गेमिंग ने तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं, जिनसे कम उम्र बच्चों में प्रॉब्लमेटिक या नेगेटिव सोशल मीडिया इस्तेमाल 7% से बढ़कर 11% हो गया है। ये डेटा यूरोप, सेंट्रल एशिया और कनाडा समेत 44 कंट्रीज़ में 11 से 15 साल की उम्र के 2,80,000 बच्चों की स्टडी के बाद सामने आया है। One of the problems with social media and the incessant novelty that it generates is it keeps the brain in what is called constant exploratory mode. And so the brain is constantly now in a position where it's looking for novelty, but it's actually never settling on anything. And we always transition in our own lives between exploration and exploitation. We look for things, but then we settle on something and we use it. The problem with social media is it actually engages many of the same addiction mechanisms. It's not the same thing as substance use addictions, for example, but I think in the brain, it engages many of the addiction mechanisms which keep people glued to the constant act of looking for things, but never settling on anything. You're seeing it with an increase in depression, with an increase in anxiety. When people are constantly looking for gratification online, they always need their posts to be liked, to be responded to. I think we're entering an extremely dangerous age, and we're seeing some of the effects now. And I think a lot of the effects which we don't know and which I personally fear will not be known for some years still. इंटरनेट वॉचडॉग ई-सेफ्टी ने ये सजेस्ट किया है कि सोशल मीडिया कंपनीज को हर यूज़र की उम्र दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो पहले से मौजूद डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन बच्चा है और कौन बड़ी उम्र का शख्स। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों को जो सबसे बड़े ऑनलाइन ख़तरात हैं उनमें सेक्स एक्सप्लॉयटेशन की पोस्ट, मार धाड़, ऑनलाइन गेम्स, सुसाइड या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाला मटीरियल और उस तक एक्सेस, जंक फूड्स के लाइफस्टाइल की खराबियां शामिल हैं। We see rates of depression and anxiety and suicide and loneliness going up among young people. And I'm concerned that social media is an important driver of that youth mental health crisis. This is the defining public health issue of our time, youth mental health. I appreciate that the technology companies have taken some steps to try to keep kids safe, but it hasn't been nearly enough. What's at stake here is our kids and their future, plain and simple. 2025 में इप्सॉस की जानिब से 30 कंट्रीज़ में किए गए सर्वे में 74% पेरेंट्स और 71% एडल्ट्स ने 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर मुकम्मल बैन की हिमायत की। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई दूसरी कंट्रीज़ भी सख्त पाबंदियों से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। मलेशिया अपना तरीका बना रहा है। जनवरी 2026 से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने के लिए EKYC यानी नो योर कस्टमर और उसकी शनाख्त इलेक्ट्रॉनिकली की जाएगी और यकीनी बनाया जाएगा कि ये शख्स 16 साल से कम उम्र का नहीं है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन का एक बिल पेश किया जा चुका है। पापुआ न्यू गिनी में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लग चुकी है, जबकि 14 साल या उससे ज़्यादा उम्र के यूज़र्स के लिए डिजिटल शनाख्त यानी कि सर्विस पास का होना लाजमी है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सोशल मीडिया पर फैलाई गई फेक न्यूज़ मासूम जहनों में तासुब, मायूसी और नफरत के जज्बात को जन्म दे रही है।
पाकिस्तान में जुलाई 2025 में पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली और सेनेटर मसूद अहसन ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए एक बिल पेश किया था, लेकिन पार्टी लीडरशिप के मशवरे पर इससे वापस ले लिया गया। कम उम्र बच्चे रात भर कोई पाबंदी नहीं है, ना खाने पे तवज्जो देते हैं और क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं इस सोशल मीडिया पे, तो इसलिए अब मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाए। और दुनिया के दीगर महज़ब मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इस पर पाबंदी लग चुकी है। इटली में डिजिटल कॉन्सेंट की उम्र 14 साल और जर्मनी में 16 ईयर्स मुकर्रर है। इससे कम उम्र बच्चों का डेटा वालिदैन की इजाज़त के बगैर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। नॉर्वे में डिजिटल कॉन्सेंट की उम्र 13 ईयर्स से बढ़ाकर 15 ईयर्स करने पर अब गौर हो रहा है। यूके में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की उम्र की सख्त कॉन्फर्मेशन करना अब लीगली ज़रूरी है। चाइना ने माइनर मोड नाफिज कर रखा है, जिसके तहत बच्चों के स्क्रीन टाइम को महदूद किया जाता है और रात के वक्त बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल खुद रुक जाता है। फ्रांस में 15 ईयर से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले पेरेंट्स की इजाज़त ज़रूरी है। पेरेंट्स की मंजूरी के बगैर अकाउंट बनाना नामुमकिन है। आपको शायद याद ना हो, जून 2025 में फ्रांस के एक मिडिल स्कूल में एक 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने अपनी 31 ईयर ओल्ड टीचिंग असिस्टेंट को चाकू से हलाक कर दिया था, जिसके बाद फ्रांस के सदर मैक्रोन ने यूरोपियन यूनियन पर जोर दिया था कि 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर EU ऐसा नहीं करती तो फ्रांस कम से कम अपने मुल्क में ऐसी पाबंदी लगाने पर गौर करेगा। Donc la stratégie, c'est interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. हिकमत अमली ये है कि 15 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए और हम नौजवानों को इसके लिए कहीं बेहतर तौर पर तैयार करने जा रहे हैं। हमें पुख्ता यकीन है कि इससे एडिक्टिव बिहेवियर को कम किया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि मोबाइल फोन्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। मेरा ख्याल है कि आपके यहाँ ज्यादातर नौजवान सेकेंडरी स्कूल के तलबा हैं, इसलिए वहाँ मोबाइल फोन पर पाबंदी नहीं है और जब पाबंदी स्कूल की जानिब से लगाई जाती है तो इस पर इत्तेफाक राय भी कम होता है। हमने इस इक़दाम को तजर्बाती बुनियादों पर सेकेंडरी स्कूलों में आजमाया और फिर गुज़िश्ता सितंबर में इसे पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया। हमें इसके बारे में जो रद्द-ए-अमल मिला है और मैं यहाँ असातिज़ा और स्कूल इंतज़ामिया की निगरानी में बात कर रहा हूँ, वो ये है कि ये काफ़ी हद तक मौसर साबित हो रहा है। चूँकि ये एक कौमी सतह की पाबंदी है, इसलिए इसे कबूल किया जा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो दुनिया एक अहम तब्दीली से गुजर रही है। वर्चुअल दुनिया बच्चों को स्मार्ट स्क्रीन से बाहर एक्चुअल दुनिया से दूर कर रही है और सोशल मीडिया को अब बच्चों के लिए महज एक तफरी नहीं बल्कि ख़तरनाक प्रोडक्ट के तौर पे देखा जा रहा है, जिसके लिए वार्निंग्स, पाबंदियाँ, प्रोटेक्टिव डिज़ाइंस हर सूरत में ज़रूरी है। सवाल ये नहीं रहा कि पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि बच्चों की ऑनलाइन ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव है। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों के स्क्रीन टाइम को महदूद करें, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की निगरानी करें, उन्हें बुक रीडिंग, स्पोर्ट्स और आर्ट्स जैसी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ मोटिवेट करें, ताकि उनके मेंटल, सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रुकावट ना बने।